Welcome dear students and friends to this channel. So today's concept is Q and its implementation. So we are starting a new concept, that is Q and its implementation. So this will be covered in two parts. So this is the part 1. And in previous lectures I discussed trees, concept of trees. So I think a couple of lectures, maybe 2 or 3 lectures are dedicated to trees. Those who want to learn all the kind of trees and its concept, so they can refer my previous video. So let us start. So first of all, this is Q. So what is Q basically? Q is a linear data structure in which one side insertion, another side deletion. Means दोनों साइड से ओपन रहता है ना, one side insertion, another side deletion, first in last out. I will clarify all the points. Okay, just a minute. So let me explain you that. For example, let us assume this is a Q. So Q you know very well. Wherever say for example, if you are going if you are traveling somewhere and want to purchase a ticket na, offline mode through a window, then there is definitely a queue. Who will come first? So he will be served on the first basis. So first come first serve, or other way of saying first in first out है ना, or other way of saying last in last out. So the persons who will reach last, so they will be served last. So last in last out. So as an example, consider this. So say for example, this is a queue, maybe few random number of elements are there. So this part of queue, this part is called as what? Rear. This part is called as rear, and this part is called as what? Front. So this is the front of queue. Okay, so one side insertion, another side what? Deletion. So which side we use for insertion? So insertion is always done from rear. So this is the insertion point, insertion side. Okay, and deletion is always done from what? Front. So this is the deletion side, deletion side. Okay, now first in first out or last in last out, so already I explained. So means firstly जो insert होगा यहाँ से rear से, उसको पहले delete किया जाएगा front से. Okay, and next is what? Front is a variable which contain position of the element to be inserted. तो front क्या है? एलिमेंट टू बी डिलीटेड. तो फ्रंट वो पर्टिकुलर पोजीशन पे पॉइंट करेगा जो एलिमेंट हमें डिलीट करना है. ओके, मींस जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को नेक्स्ट टाइम डिलीट करेंगे वहां पॉइंट करेगा. और रेयर क्या है? रेयर इज अ वेरिएबल व्हिच कंटेन पोजीशन ऑफ द न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट. जो भी अभी इंसर्ट किया होगा वो क्या बन जाएगा? रेयर बन जाएगा. सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन. सो now next is what? ADTs of stack. So ADT stands for abstract data type. So ADTs मतलब क्या क्या हम operations perform कर सकते हैं ADTs. So first is what? Insertion. So insertion into a queue. तो उसमें क्या लगेगा? हमें queue लगेगा. Queue हमारे पास होना चाहिए और एक integer होगा. तो insert अगर हम ऑपरेशन करेंगे insertion, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा? हमें queue मिलेगा. But what is the difference between this queue and this queue? That जो पहले हमने queue यहाँ आर्ग्यूमेंट में पास की है उसमें वो एलिमेंट नहीं है जो हमने इंसर्ट किया है ना. मतलब ये जो आउटपुट में हमें क्यू मिला है, दैट इज द मॉडिफाइड और अपडेटेड क्यू विद दैट इंटीजर. एंड व्हाट अबाउट डिलीशन? सो डिलीशन में हम क्यू देंगे और देन दिस डिलीशन विल गिव यू एज आउटपुट एज इंटीजर. ओके, सो द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट व्हाटएवर इट विल डिलीट. नाउ इज एम्प्टी. सो इट इज आल्सो व्हाट? वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट. सो इट इज boolean ट्रू और false, some sort of, है ना. एंड इज फुल. So Q is given and it will also return boolean. Whether the if this is full return true, that means the Q is full. Otherwise the Q is empty if it is returning false. Okay, so as an example, let us take this one. For let us suppose there are few elements in a queue. There are few elements in a queue, and these are the indexes like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So in this case what is the size of queue? N is what? 7. 7 is from 0 to 6. Okay, suppose कुछ elements भी हैं वहां पे. let us suppose A, B, C, D, है ना. तो हमारा यहाँ पे front की वैल्यू क्या होगी? Front is 0. and what about rear? So rear is what? Position of the element to be inserted, what? Inserted element. So this is what? 3.
currently it is 3. Okay, so this is the situation right now. अब बट इफ यू डिलीट, सो अगर आप डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि फ्रंट की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डिलीशन करता हूं तो यहाँ डिलीट करने पे क्या होगा, let me delete something, then it is clearly observable. Suppose I am deleting this, so what about my front value? Then the front value will become 1. Okay, and suppose I inserted e as an element 1, so what about my rear? So rear will also be increased, so rear will be 4 in that case. Okay, so these are few basic things. So these are your abstract data types, that is ADT of Q. So insertion, deletion is empty and is full. Means what are the kind of operations in abstract manner that we can perform. Like we also discussed in stack. So what are the ADTs of stack? Like push, pop, is empty, is full, है ना? And like get top or somewhat, है ना? So that those are nothing but the abstract data type ADTs. Now let us move to the actual implementation part. So how we are going to implement. So first we are implementing linear queue implementation. So first thing is NQ. So here NQ is what? NQ stands for insertion. NQ means NQ is for insertion and DQ is for deletion. Now understand very carefully what is going on. तो insertion की बात कर रहा हूं मैं. insertion में क्या आपको given है? Q given है. So Q is the name of, we are ultimately using what? Array as a data structure basic. तो array अगर है तो ये Q given है, means Q means name of that array or name of that Q. N is what? Size of Q. F is front, so means index of the front variable or front element to be deleted. Or R is what? Index of the element which newly inserted element. And X is the element which we want to insert, because this is insertion operation. So I think these parameters are clear to you. Q, N, F, R and X. Q and N are respectively for name of Q and size of Q. F and R front and rear, and X the element to be inserted. So what is this case? This particular case says that, let us suppose if the Q is full, let us suppose N value is what? 3. So in case of 3, so this 1, 2 and 3. Let us suppose this is 0, 1 and 2. Elements are already there like A, B and C. So what about front in that case? Front is 0. And what about rear? Rear is what? 2. So in this case, means insertion हमें कहाँ से करना है? Insertion we are supposed to do what? At from rear. तो हमें rear consider करना है. Rear अभी currently कहाँ है? Rear is on 2. So 2 means if you consider size minus 1, that is 3 minus 1. It is nothing but n minus 1. तो अगर रेयर की वैल्यू हमारी मैक्सिमम साइज -1 पे पहुंच गई है, बिकॉज इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो दैट द कंडीशन इंडिकेट्स दैट द क्यू इज फुल, सो वी कैन नॉट इंसर्ट, है ना, इन दैट क्यू. सो दिस इज रिटर्न लाइक इफ. सो फर्स्टली हम ये चेक करेंगे, इंसर्ट करने जा रहे हैं अगर क्यू में, तो क्यू अगर फुल है सो देन वी कैन नॉट इंसर्ट. So ultimately we are checking that R double equals to n minus 1. If rear is going to be the maximum value or maximum index, then Q is what? Q is empty. Or sorry, Q is full. So there is no space for our element which we are going to insert, and exit with 1. Now what about else part? So else part means when this else part will execute. So this will execute when the condition is false, means some sort of elements are there. Okay, means Q is there and some elements are there. Now there are few cases, so consider that. For example, this is given, this is a blank Q. So what about 0, 1 and 2? For example, n is 3. I am taking very basic example. Now what about what your front? So front is what? Front is what? -1, because no elements are there, and rear is also what? -1, because none of the element are there. Now what will happen in that case? तो हमें इंसर्शन करना है, तो हमें केवल रेयर कंसिडरेशन है हमारा, ठीक है. तो रेयर अगर वैल्यू -1 है, सो रेयर -1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मींस ये फर्स्ट इंसर्शन है. दिस कंडीशन इंडिकेट्स व्हाट? दिस कंडीशन इंडिकेट्स फर्स्ट इंसर्शन. सो दिस इज व्हाट? दिस इज फर्स्ट इंसर्शन. फर्स्ट इंसर्शन. सो लेट अस सपोज आई इंसर्टेड ए. सो अब डेफिनेटली क्या होना चाहिए? मेरा फ्रंट और रेयर दोनों कहाँ आ जाना चाहिए? 0 पे. So in that case, what will happen? That front and rear will become on 0, will come on 0, like this. So this is the condition, means first insertion. और अगर first insertion नहीं है तो फिर condition क्या हो सकती है?
So this is the condition. So what is this? So let us suppose there is a full-fledged queue, है ना, for example 0, 1 and 2, and already some elements are there like A, B. So in this case, what about front? Front is going to be 0, and rear is what? Rear is 1, और n is size. Size is what? 3. तो अभी देखिए, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें केयरफुली, तो यहाँ क्या होगा कि अभी ये केस है हमारा थर्ड वाला, ये केस कंसिडर करिए। तो इस केस में क्या है, हमारा Q गिवन है, सो दिस इज Q, एंड N गिवन है, R गिवन है, और X वी आर सपोज टू इंसर्ट। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो क्या रेयर n-1 है? नो, Q इज नॉट फुल, तो एल्स में आएंगे। क्या ये फर्स्ट डिलीशन है? रेयर अगर हमारा -1 होता तो फर्स्ट डिलीशन होता, बट रेयर इज व्हाट? 1, सो इट इज नॉट फर्स्ट डिलीशन। सो एल्स पार्ट में जाएंगे, मींस देयर इज सम अवेलेबिलिटी इज देयर, सो दिस इज नॉट इक्वल, दिस मस्ट बी प्लस, दिस मस्ट बी प्लस, दिस इज रिटन रॉन्ग। ओके, तो हमें क्या करना है पहले कि हम अगर हमें नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, लेट अस सपोज C, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? रेयर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि रेयर इक्वल्स टू रेयर प्लस 1, सो रेयर विल कम ऑन 2। ओके, सो नाउ दिस विल बी अवर रेयर, दिस इज अवर रेयर, दिस इज अवर रेयर। ओके, एंड आफ्टर दैट हमें वहां इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट कैसे करेंगे कि Q ऑफ रेयर जहां पॉइंट कर रहा है, या रेयर जो इंडेक्स है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें X इंसर्ट करना है। सो दिस इज द पार्ट। Okay, so this is very simple operation, and it is returning nothing, so that's why the void is the return type, है ना? So this is what this is called as your NQ operation. Okay, linear queue implementation में NQ means insertion operation. So same case as of deletion. So if we consider deletion part, so again deletion में हमें इसमें क्या एक पैरामीटर मिस हुआ है? The missing parameter is what? Q गिवन है, N गिवन है, साइज Q का, F और R, फ्रंट और रेयर गिवन है, बट Q is X is missing. Why? Because we are not inserting anything. Ultimately we are deleting something, है ना, from the Q. So what will happen? एक इंटीजर मैंने Y लिया। अब देखिए डिलीशन के केस में क्या पॉसिबिलिटी है? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डिलीट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डिलीट समथिंग, दिस इज माई N इक्वल्स टू 3 एंड 0, 1 and 2. सो अभी करंट सिचुएशन अगर हम कंसीडर करें, जो हमारा ये डायग्राम ड्रॉ है, तो फ्रंट क्या होगा? फ्रंट इज नॉट 0, फ्रंट इज व्हाट? -1, एंड रेयर इज व्हाट? -1। ओके, अब हमें डिलीट करना है, बट यहाँ कुछ एलिमेंट है ही नहीं, है ना, Q एम्प्टी है। तो एम्प्टी कहाँ से? हम डिलीशन कहाँ से करते हैं? डिलीशन इज ऑलवेज डन फ्रॉम फ्रंट। सो फ्रंट हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है? -1 पे। तो अगर F की वैल्यू हमारा क्या है? -1 है, तो ये इंडिकेट्स करेगा, ये what will indicate that Q is empty and exit with 1. So this is what? Empty Q. So ultimately this operation is nothing but we can say this operation is, we are implementing is empty operation. So this is some sort of is empty operation. And previous case is what? This part. So this part is what? This part is a full, if we think it as, so this is checking the full condition, so is full. Okay, now let us suppose some value is there, but mainly one value is available. For example, this is the Q, so 3 elements are there, 0, 1 and 2, N is given as 3, and this is the Q. Or let us suppose here only one element is there. So what about front? Front is 0 as well as rear is also 0. तो अगर हम इसमें से डिलीट कर देंगे, so what will happen in that case? तो सबसे पहले तो हम डिलीट कर ही लेते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ जो फ्रंट जहां पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू ली और y में स्टोर कर दी। तो हमने ये a को कॉपी कर लिया y में, ठीक है। तो y इक्वल टू व्हाट? Q ऑफ f, है ना। तो y इक्वल टू Q ऑफ हमने f किया, तो इससे y में क्या आ गया हमारा? y हमारा पॉइंट करेगा a पे, y इज होल्डिंग a, a होल्ड हो गया। अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट मीन्स we are not bothering about that location, means this location can be overwritten, है ना, in future. So that means हमको f क्या करना है ना, f जो है उसको डिक्रीज करना है, मीन्स फ्रंट को हमें हटाना है, और डेफिनेटली रेयर भी हटेगा। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा? जब हमने इसको डिलीट किया तो इस केस में क्या होगा कि फ्रंट और रेयर दोनों कहाँ पॉइंट करेंगे? बोथ विल पॉइंट टू -1। ओके, क्योंकि ये है ना लास्ट डिलीशन है। सो दिस इज समवॉट दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज लास्ट डिलीशन। लास्ट डिलीशन, अगर लास्ट डिलीशन है तो फ्रंट और रेयर दोनों कहां आ जाएंगे? -1। बट कंसिडर दिस केस। सो व्हाट अबाउट दिस केस? दैट योर Q is given. So let us suppose 3 elements are given like 0, 1 and 2, and N is assumed to be 3,
and it is Q. What about your front? Suppose A and B are there. So front is what? Front is 0 and rear is what? Rear is going to be here 1. Now अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट हम कहां से करेंगे? ऑलवेज फ्रॉम फ्रंट. तो फ्रंट हमारा क्या है? 0. तो हमें सबसे पहले होल्ड तो हमने कर ही लिए वैल्यू, तो y में अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो y में क्या आ चुका है? A. फिर इसके बाद हमें क्या करना है? फ्रंट को मीन्स ये आगे बढ़ाना है ना, फ्रंट को हमें आगे बढ़ाना है डेफिनेटली. तो यहाँ क्या होगा? f इक्वल टू f+1. तो ये यहां से डिलीट हो गया. फ्रंट हमारा क्या हो जाएगा? इन दैट केस फ्रंट इज व्हाट? 1 एंड रेयर इज व्हाट? रेयर इज ऑल्सो. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है, ये हमारा है ना डिलीशन. और रिटर्न क्या करेंगे हम? फिर इसमें y रिटर्न कर देंगे क्योंकि y हमने होल्ड किया हुआ है. तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? इंटीजर, बिकॉज वी आर रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इंटीजर y. So I hope that this concept is clear to you. So this is linear queue implementation in which we are implementing insertion as well as deletion operation. Now one important what consideration or one important insight, if you are following carefully, that suppose deletion is always we are doing from front. deletion हमेशा हम कहां से कर रहे हैं? फ्रंट से. बट इन केस ऑफ फ्रंट, अगर फ्रंट हमारा डिलीट होते 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 मीन्स कुछ एलिमेंट्स है, बहुत बड़ा क्यू है, फॉर एग्जांपल लेट अस से 100 एलिमेंट्स का क्यू है, उसमें से 50 एलिमेंट्स हम डिलीट कर चुके हैं, ठीक है, और 75 एलिमेंट्स हम इंसर्ट टोटल 75 किए थे. 75 के बाद हम मीन्स ओवरऑल हमने इंसर्शन कर दिए 100 एलिमेंट्स, बट 100 एलिमेंट में से 50 एलिमेंट हम डिलीट कर चुके हैं. तो हमारा करंट सिचुएशन क्या है कि क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज हैविंग सम स्पेस, मीन्स 50 एलिमेंट का स्पेस है, बट अनफॉर्चुनेटली हम रेयर से ही इंसर्ट करना है और रेयर हमारा फुल है. तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन है कि हम एक ही साइड से इंसर्ट कर सकते हैं रेयर से, बट है ना फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली द क्यू इज व्हाट? क्यू इज योर क्यू इज हैविंग सम स्पेस, है ना. So we are not utilizing that particular space efficiently. So that is the main problem. So now we'll look into that. So say for example this is the queue. So 0 1 2 3 4 and 5. So what about n? N is what? 6. Okay. And what about front in that case? So front is what? Front is 4 and rear is what? Rear is what? 5. अब देखिए ये वो सिचुएशन है, ये दिस इज अवर क्यू, है ना, दिस इज अवर क्यू. तो ये वो सिचुएशन है जहां पर आपका देखिए क्यू है, लीनियर क्यू है, उसमें स्पेस है, मतलब हम कुछ वैल्यू चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं, बट क्यों इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज हम इंसर्शन कहां से करेंगे? इंसर्शन वी विल डू फ्रॉम रेयर एंड डिलीशन वी विल डू फ्रॉम फ्रंट. तो अभी फिलहाल हमारे केस में रेयर जो है वो कहां तक पहुंच चुका है? लास्ट तक. तो यहाँ कोई स्पेस नहीं है जहां से हम इंसर्ट कर पाए इसमें, ठीक है. सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम और मेजर ड्रॉबैक, बिकॉज वी आर नॉट देयर इन द पोजीशन टू गो बैक. कोई इस तरीके का मैकेनिज्म हो कि हम इसमें पीछे जा सकें, ठीक है. तो अगर आर हमारा जो है मैक्सिमम तक पहुंच जाता है, देन दिस ऑलवेज दिस व्हाट दिस क्यू विल से दैट आई एम फुल, है ना, एंड ब्ला. सो अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम और ऑब्जर्वेशन व्हाट वी कैन से कि इन द अबव क्यू वी कैन नॉट इंसर्ट वन मोर एलिमेंट फर्दर because r reaches to n-1. r reaches to n-1 means r cannot go back. Okay, if r reaches to n-1, r cannot go back maximum. So this will say that I am full, but this is not full actually, we know. So this is not the proper implementation. So in the linear queue, even though space is available, what we cannot insert because r cannot go back. So this is the major drawback of linear queue. So to eliminate this particular drawback, so linear queue is not efficient way of implementing what? Queue. So this is not an efficient way of implementing queue. So to overcome this problem, circular queue concept is introduced. So what is circular queue? So this concept is known as circular queue or CQ, whatever you give the name, circular queue. So let us suppose this is 0 1 2 3 and 4 and 5. Again the same case, n is given as 6. So in this case फ्रंट इज व्हाट? 4 एंड सो इसमें क्या करेंगे हम कि यहां से हम कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म है हमारे पास कि हम आगे भी मूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो हम आगे मूव कर सकते हैं, बट अगर हम लीनियर क्यू की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इफ वी ऑब्जर्व व्हाट? लीनियर क्यू, ऑब्जर्व केयरफुली, लीनियर क्यू. तो अगर हम लीनियर क्यू की बात करें तो फ्रंट हमारा क्या है?
front is 0, not 0, front is what, 4, and rear is what, rear is 5 in that case. तो ऑलवेज लीनियर क्यू में बहुत कंडीशन होती है ये कि एफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू क्यू, ये कंडीशन होती है किसमें, लीनियर क्यू में. फ्रंट हमेशा लेस या इक्वल हो सकता है ना. बट सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट में क्या हो सकता है कि इन केस ऑफ सर्कुलर क्यू कि फ्रंट हमारा आगे भी हो सकता है. अब इस केस में जैसे ये फुल हो गया है तो रेयर हमारा कहां चला जाएगा, फ्रंट मस्ट बी लेस देन व्हाट, रेयर, नॉट क्यू. फ्रंट मस्ट बी लेस देन व्हाट, रेयर, लेस देन और इक्वल रेयर. तो बट इन दैट केस क्या होगा कि अभी फिलहाल जैसे हम बात करें तो फॉर एग्जांपल लेट मी ना से दैट आई एम इंसर्टिंग ए. ओके, तो ए इंसर्ट किया, लेट मी चेंज दिस. say for example I am going to insert here a insert कर रहे हैं. ओके, तो in that case what will happen कि front हमारा क्या हो जाएगा, front means front हमारा क्या रहेगा 4, but rear हमारा क्या हो जाएगा, rear will become 0. so means we can say that है ना that in that case what, front can also be greater than what, rear. so this is the case, मतलब फ्रंट हमारा आगे भी जा सकता है, मूव कर सकता है. सो दिस इज द केस. तो मींस इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको एफिशिएंटली हम यूज कर पाएंगे इस क्यू को. ठीक है, बट रिमेंबर सर्टेन कंडीशंस वी नीड टू व्हाट, है ना, इंपोर्टेड, सो दैट वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू. मींस ड्रॉबैक ऑफ लीनियर क्यू वी विल इंप्लीमेंट एफिशिएंटली बाय विद द यूज ऑफ व्हाट, सर्कुलर क्यू. सो ऑब्जर्व केयरफुली. सो इन सर्कुलर क्यू after r reaches to what, n-1 maximum position, maximum place, r can come back to 0 minimum place. so if space is available then it can come back. so this is the implementation part of circular queue. observe very carefully. now I am implementing means insertion as well as deletion, means nq and dq. so circular nq and circular dq. so this name of this function is cnq means insertion. so this is the insertion. so it is circular insertion. okay, now observe very carefully what is going on. so same case, q is given, n is given, front, rear and x is given. but here what we are observing that यहाँ जैसे previous case में हमने देखा था केवल rear अगर n-1 है तो हम क्या देते थे डायरेक्टली, q is what, overflow और q is full. बट यहाँ क्या केस हो सकता है कि rear n-1 है बट अगर front की वैल्यू भी क्या है, साथ में 0 है. ठीक है, means for this condition, say for this condition this is 0, 1 and 2 and n is what, observe very carefully, n is 3. okay, and let us suppose a, b and c is there. okay, और rear हमारा क्या है, n-1. so rear in इस केस में क्या होगा, rear is what, n-1 means 2, in this case 2, and front is what, 0. so this is the condition, this condition entirely matches, है ना. तो अगर ऐसा केस है तो डेफिनेटली हम क्या कहेंगे, मींस हम केवल रेयर के बिहाफ पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्यू हमारा फुल है, हमें फ्रंट को भी चेक करना पड़ेगा. अगर रेयर मैक्सिमम तक पहुंच गया है और फ्रंट हमारा 0 है देन डेफिनेटली वी कैन से दैट क्यू इज फुल. और अदरवाइज क्या हो सकता है, और रेयर हमारा n-1 पे नहीं है ना, एंड मतलब रेयर हमारा n-1 पे भी पहुंच गया, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है फुल कहने का, कि ये इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे हमारा 0, 1, 2, ठीक है, और इस केस में क्या हो सकता है, से फॉर एग्जांपल here it is what, a, b and c, and this is what, this is r and this is c, this is f. ठीक है, not f, say this is f, this is f. तो इस केस में क्या हो सकता है कि हमारा है ना, यहाँ पे सर्कुलर क्यू मींस यहाँ हम ऑब्जर्व करते करते यहाँ भी आ सकते हैं. ठीक है, सो इस केस में क्या हो सकता है कि रेयर हमारा फ्रंट से एक लेस हो, रेयर मस्ट बी लेस देन फ्रंट, मींस रेयर इक्वल टू फ्रंट -1 अगर पहुंच जाए तो ये केस भी हो सकता है. तो अगर ये दो केसेस हैं यहाँ पर, इनमें से कोई भी एक केस है, या तो कंप्लीट ये केस हो गया, ये लीनियर के लिए है, लेकिन सर्कुलर के लिए एडवांस केस हो गया कि रेयर की वैल्यू अगर हमारी फ्रंट -1 हो जाए, मींस रेयर आगे भी मूव कर सकता है, तो रेयर की वैल्यू फ्रंट -1 हो जाए फिल करते करते, देन वी कैन से दैट क्यू इज व्हाट, ओवरफ्लो और क्यू इज फुल.
and है ना, we will exit. Now next case is what? So next case is this one. तो यहाँ देखिए रेयर अगर हमारा -1 है, so this is what same what last what first insertion means रेयर हमारा -1 है, so we can say front equal to rear equal to 0. So this is first insertion. So this case and this case, these are what? These are the linear Q case. ओके अगर हमारा फ्रंट -1 है तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रंट और रेयर को 0 कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उस पर्टिकुलर प्लेस पे Q ऑफ R पे हम इंसर्ट कर सकते हैं रेयर्स. बट अगर एल्स इफ R हमारा क्या है, n-1 है ना, R हमारा n-1, डेफिनेटली हम इस एल्स पार्ट में कब आए हैं, जब ये इफ पार्ट क्या है, फॉल्स है. तो इफ पार्ट फॉल्स होने से हम एल्स में आए. इसका मीन्स क्या हो सकता है कि या तो हमारा ये है कि रेयर n-1 है ना है, बट फ्रंट हमारा 0 नहीं है. तो फ्रंट हमारा 0 नहीं है मीन्स फ्रंट में स्पेस है. तो फ्रंट में स्पेस है तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर रेयर हमारा n-1 है, then rear we can say that rear equals to 0. So this case is specifically for what? Circular Q. This case is specifically for circular Q. Getting my point? तो यहाँ बड़ा ही आसान केस है कि हमारा रेयर n-1 पहुंच गया बट फ्रंट में जगह है. तो फ्रंट में जगह है तो हम रेयर को कहाँ करेंगे, 0 पे. मीन्स रेयर कहाँ जाएगा, आगे. सर्कुलर है, सो दिस इज इम्प्लीमेंटिंग सर्कुलर बिहेवियर. और हम फिर वहां पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे रेयर पे Q को इंसर्ट कर देंगे. सो दिस इज द केस. So I hope that this is clear to you. Simple circular Q concept है ना. And in case of what? Insertion के केस में हम क्या कर रहे हैं कि इंसर्शन के केस में हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है कि सबसे पहले तो रेयर अगर हमारा मैक्सिमम पहुंच गया है और साथ में फ्रंट भी 0 पर है, देन मीन्स डेफिनेटली दैट Q इज फुल. और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या कहीं रेयर मूव करके जस्ट फ्रंट के पहले तो नहीं पहुंच गया, मीन्स रेयर इक्वल टू f-1 तो नहीं हो गया है, देन वी कैन से Q इज फुल. बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर 2-3 केस और हो सकते हैं एल्स में कि रेयर हमारा अगर -1 है मीन्स फर्स्ट इंसर्शन है, जस्ट इंक्रीज द रेयर एंड फ्रंट मीन्स टू 0 एंड इंसर्ट. और सेकंड केस क्या हो सकता है कि रेयर हमारा n-1 पहुंच गया है बट फ्रंट इज अवेलेबल. तो फ्रंट अवेलेबल है तो सेकंड केस बनेगा ये कि रेयर को हम 0 करेंगे और फिर वहां इंसर्ट कर देंगे. और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये नॉर्मल केस हो गया कि रेयर को इंक्रीज करो और वहां व्हाट आप वहां पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, फाइनली. सो दिस इज इंसर्शन ऑपरेशन CQ. And next is what? Next is DQ. So this is deletion, circular deletion. So this is known as circular deletion. CDQ means circular deletion. Okay. So the first condition is very easy. Means आपका अगर front -1 है, क्योंकि front से ही हम decide करते हैं कि हम delete करेंगे front के basis पे. तो front अगर हमारा -1 है, so this we can say it is not CQ, it is only Q. It is not CQ, ठीक है, it is only Q. So अगर फ्रंट हमारा -1 है, so we can say Q is अंडरफ्लो. ओके, मींस हमारा फ्रंट ही नहीं है कुछ, ठीक है, ये एम्प्टी का केस है, तो हमारा फ्रंट भी -1 है और रेयर भी -1 है, ठीक है. सो इन दैट केस वी कैन से दैट व्हाट Q इज अंडरफ्लो मींस Q इज एम्प्टी. नाउ नेक्स्ट केस इज व्हाट? एल्स इफ. सो एल्स Q में हम फ्रंट से वैल्यू ले लेंगे, स्टोर कर लेंगे. सो वट एवर द वैल्यू इज देयर, से फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, और फिर हम चेक करेंगे कि अगर फ्रंट डबल इक्वल्स टू क्या हुआ, हमारा रेयर हुआ, ठीक है. फ्रंट डबल इक्वल्स टू रेयर, इट इज नॉट सिंगल इक्वल, इट इज डबल इक्वल्स. सो इफ फ्रंट डबल इक्वल्स व्हाट? रेयर. तो फ्रंट डबल इक्वल्स रेयर के केस में हम क्या करेंगे कि फ्रंट और रेयर को -1 कर देंगे. मीन्स वी कैन से मीन्स दिस इज द लास्ट डिलीशन. लास्ट डिलीशन का केस क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेयर A. तो फ्रंट और रेयर हमारा क्या है, फ्रंट और रेयर इक्वल है, ठीक है, एंड फ्रंट एंड रेयर आर इक्वल एंड दे आर व्हाट? फ्रंट डबल इक्वल्स टू व्हाट? रेयर. कहीं भी हो सकता है वो, इट मे बी एनी प्लेस, नॉट रिक्वायर्ड दैट इट मस्ट बी ओनली है ना एट द फर्स्ट प्लेस, इट मे बी एट एनी प्लेस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 3, दिस इज 4. सो फॉर एग्जाम्पल A इज देयर है ना, तो फ्रंट भी मेरा यही होगा और रेयर भी मेरा कहाँ होगा, यही होगा. तो इन दिस केस फ्रंट डबल इक्वल्स टू व्हाट? रेयर. तो फ्रंट और रेयर इक्वल है, तो ये तो मैं स्टोर कर ही चुका हूं किसमें, Y में. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, दिस आई हैव ऑलरेडी स्टोर्ड है ना इन Y. सो Y इज हैविंग व्हाट? A, एंड सिंपली व्हाट वी आर सपोज टू डू कि F डबल इक्वल्स टू R डबल इक्वल्स टू F इक्वल्स टू R इक्वल्स टू व्हाट? -1.
तो सिंपली हम दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को हम f और r को -1 पे कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द केस ऑफ लास्ट डिलीशन। ओके, सो दिस इज सेम केस है ना, एज वाज इन अर्लियर केस, मींस लीनियर क्यू केस, है ना। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि f अगर n-1 पे पहुंच गया है ना, f कहां पहुंच गया है, फ्रंट हमारा n-1 पे पहुंच गया है। तो फ्रंट हमारा n-1 पे कब पहुंचेगा कि से फॉर एग्जांपल f हमारा ये 3 था ना, 0 1 एंड 2, सो n इज व्हाट, n इज 3 इन दिस केस। तो अगर 3 है यहाँ पे और फ्रंट हमारा कहां पहुंच गया है, n-1 पे, से फॉर एग्जांपल दिस इज a, ठीक है, और ये फ्रंट है, फ्रंट हमारा ये सिंपल केस है, ये हमारा फ्रंट है ना, ये हमारा लेट अस सपोज ये बी है। तो रेयर हमारा कहाँ है, दिस प्लेस इज व्हाट रेयर एंड दिस प्लेस इज व्हाट, दिस प्लेस इज फ्रंट। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। तो हम फ्रंट को कहाँ ले जा सकते हैं, 0 पे ले जा सकते हैं, फाइनली लास्ट तक पहुंच गया है। तो फ्रंट अगर हमारा 2 पे पहुंच गया है तो हम इसको कहाँ ले जा सकते हैं, वापस। तो दैट मीन्स अगर हम लास्ट तक फिल कर चुके हैं तो हम फ्रंट को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल केस है कि फ्रंट को हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम 0 से इंसर्ट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर circular queue. This case is specifically for circular queue. Okay, और अदरवाइज फिर क्या होगा, अगर ये सारे केसेस नहीं है तो सिंपली वी कैन से कि फ्रंट को हम आगे बढ़ाएंगे, दैट्स इट। और ये तो यहाँ केवल एक एक केस, यहाँ पे यहाँ ये केस जो सर्कुलर क्यू के लिए है और पिछले में एक और केस था। सो दिस इज अबाउट व्हाट, सर्कुलर क्यू implementation, means insertion as well as deletion. So definitely the time complexity is constant, है ना। So the time complexity, why it is constant? So simply just condition checking whether they are equal or not, or some if else condition. So time complexity for all these operations are what, constant, so order of 1 always. Now so this is an interesting program, that write a program to implement queue using linked list. So linked list का यूज करके हमें queue implement करना है। क्यू इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है, क्यू इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि हमें इसके एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन है ना बनाना है। एन क्यू और डी क्यू मीन्स इंसर्शन भी करना है और डिलीशन भी करना है, बट डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज रहेगा, लिंक लिस्ट। सो पहले हम इसका इंसर्शन देखते हैं, एन क्यू ऑपरेशन। सो एन क्यू ऑपरेशन में स्ट्रक्ट नोड एफ इज गिवन, सो इट इज अ पॉइंटर एफ, आर इज अ पॉइंटर और एक इंटीजर दिया हुआ है एक्स, ठीक है। एक पॉइंटर मैंने पी लिया, सबसे पहले पी एक नोड बनाया। तो इट इज वेरी सिंपल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस, है ना, व्हाट दैट structures and unions, and also in linked list part, that malloc function is used for dynamic memory allocation. So dynamic memory allocation के लिए क्या होगा कि आपने struct node के लिए जितना स्पेस लगेगा उतना स्पेस का आपने साइज लिया और डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराई और उसको पॉइंट करा दिया एक पॉइंटर से, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर से। और पी उसको पी मींस ये इसका एड्रेस कहाँ स्टोर कर दिया, पी में। सो पी डेफिनेटली क्या है यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, पॉइंटर, ठीक है। सो दिस impact of this line is what, कि that p है ना, pointer will be there, so like this, so है ना, इस तरीके का एक स्ट्रक्ट नोड बन जाएगा। बट अगर p नल है, मीन्स अगर हमारे लिए मेमोरी अवेलेबल नहीं हुई है ना, that compiler or OS is not there in the position to allocate memory for our required demand, है ना, dynamic time, run time. So then definitely p is what, null. So p is null means memory is over, or है ना, so means memory is over means not available space, and exit with 1. But if else, what about else? तो else के केस में क्या होगा कि else के केस में हम यहाँ जो p हमने यहाँ पॉइंट किया है, तो p का जो डेटा पार्ट होगा यहाँ डेटा होगा, और यहाँ क्या होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट होगा डेफिनेटली। तो इसके डेटा पार्ट में हमने क्या स्टोर किया, डेटा पार्ट में हमने x स्टोर किया, क्योंकि हमें x डेटा बना के स्टोर करना होगा वहां पे, ठीक है। और इसमें क्या कर दिया, इसमें हमने नल स्टोर कर दिया। तो दीज टू लाइंस। नाउ अगर अब सेम कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर r की वैल्यू नल है, क्योंकि हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट हम कहां से करेंगे, रेयर से। तो अगर रेयर हमारा नल पे है, रेयर मीन्स रेयर हमारा नल है, तो हम रेयर ऑफ फ्रंट को क्या करेंगे, p पे पॉइंट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ कौन पॉइंट करने लगेगा, यहाँ यहीं पे r पॉइंट करेगा और यहीं f पॉइंट करेगा, ठीक है।
ये कब होगा? बट इफ आर इक्वल्स टू नल मीन्स रेयर हमारा क्या है? नल। एल्स के केस में क्या हो सकता है? फुल फ्लेक्स केस। तो फुल फ्लेक्स केस मीन्स लेट अस सपोज दिस इज गिवन है ना, 2-3 points are given, suppose this. So this is, in this case, this is our what? Front. Let us suppose A and इसमें इसका एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, this is suppose B and this is suppose C and this is what? null part. और हमारा यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पे हमारा P एक पॉइंटर बना हुआ है like this, और P में हमारा डेटा क्या है? X, और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? null. ओके, और रेयर कहाँ होगा हमारा? रेयर होगा अभी फिलहाल यहाँ दिस पर्टिकुलर। तो ये फुल फ्लेक्स केस है, दिस इज द केस है ना। तो यहाँ फिर क्या होगा हमारा कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लिंकिंग करना है। लिंकिंग कैसे करेंगे कि जो आर है रेयर जो है उसके नेक्स्ट फील्ड में पी का एड्रेस डालेंगे। सो नाउ दिस विल पॉइंट टू दिस, और फिर पी जहां पॉइंट कर रहा है वहां रेयर कर देंगे, क्योंकि रेयर अब ये नहीं रहा, रेयर क्या हो गया? दिस पर्टिकुलर नोड। सो दिस रेयर विल कम हियर, सो आर इक्वल्स टू पी, सो दिस। Okay, so this is the else part, this is the else part, and this is this particular else, and this is the end of this program. So this is very simple operation, means we are ultimately using what? Linked list for the implementation of NQ operation. Okay, so very simple. Now next is what? Deletion part. So deletion means DQ operation. So let us implement that also. तो implementation करने के लिए हमें क्या लगेगा? front और rear required. जैसे प्रीवियस केस में हमें फ्रंट और रेयर के साथ डेटा चाहिए था, क्योंकि दैट एलिमेंट वी आर सपोज टू इंसर्ट, बट इन केस ऑफ डिलीशन ओनली फ्रंट एंड रेयर इज रिक्वायर्ड। तो एक इंटीजर लिया m, जिसमें मैं वैल्यू डिलीट करके इसमें स्टोर कर लूंगा। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिया p। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन है कि f अगर मेरा नल है, f मीन्स हम फ्रंट से डिलीट करेंगे, अगर फ्रंट की वैल्यू नल है तो q इज व्हाट? अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मीन्स q इज एम्प्टी। ठीक है, अगर फ्रंट मेरा कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स Q इज व्हाट? अंडरफ्लो। बट एल्स के केस में क्या हो सकता है कि एल्स के केस में मेरा यहां लेट अस सपोज एक ही नोड है, ठीक है, ये लेट अस सपोज A है, और यही मेरा क्या है? F है, और यही मेरा क्या है? R है। ओनली सिंगल नोड, वन नोड। तो वन नोड के केस में क्या हो जाएगा? F इक्वल टू R, ये कंडीशन मैच होगी दिस पर्टिकुलर केस। तो F इक्वल टू R हुआ, तो मुझे क्या करना है? इसको सिंपली डिलीट करना है। डिलीट करना है तो पहले इसका डेटा मैंने स्टोर किया M में, F डेटा। तो M में क्या आ गया मेरा? M में स्टोर हो गया A, और फिर मैंने फ्री कर दिया F को। तो F को जब मैं फ्री करूंगा, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? F को जब मैं फ्री करूंगा तो ये फ्री हो जाएगा, और F और R को नल पे पॉइंट करा दिया। तो F एंड R कहाँ पॉइंट करेंगे? नल पे। सो दिस इज द केस व्हेन ओनली वन नोड इज देयर, बट लेट अस सपोज मल्टीपल नोड्स आर देयर. So what happen in that case? That multiple nodes are there. Let us suppose there these three nodes are there. Assume these three nodes are there. Okay. So this part is what? This part is null, and this is what's, let us say this is your rear, and this is your front. Suppose A, this is B, and this is C. So this is what? This is a Q given, है ना? So Q, but implemented using linked list. So now what will happen? तो हमने क्या किया यहाँ पे? सबसे पहले M में डेटा तो स्टोर कर ही लिया है, तो M में मैंने क्या कर लिया? M इक्वल्स टू F डेटा। तो इससे क्या होगा? M इक्वल टू क्या आ जाएगा? A स्टोर हो जाएगा दिस। फिर इसके बाद क्या हुआ? P को मैंने F पे किया पॉइंट, तो यहाँ पॉइंटर मैंने P बनाया था, तो P को मैंने क्या किया? यहाँ F पे किया, ठीक है, पॉइंट, और F को F नेक्स्ट कर दिया। तो F मेरा यहाँ से इंक्रीज होके F नेक्स्ट मीन्स यहाँ आ जाएगा। अब मेरा ये नोड फ्री है, मीन्स इस नोड को मैं फ्री कर सकता हूँ, फ्रंट मेरा बढ़ चुका है। तो इस नोड को फ्री करने के लिए पहले तो ये नोड डिलीट कर दूंगा मेमोरी। तो ये जब मैं फ्री करूंगा P को, तो दिस विल गेट लॉस्ट, है ना? सो दिस कंप्लीट, और F और जो P है, P को क्या कर दूंगा? नल कर दूंगा। सो P नाउ पॉइंट्स टू व्हाट? नल। ओके, और रिटर्न किसको करेंगे? M को, बिकॉज M इज हैविंग आवर डेटा। सो इफ वी रिटर्न M, so then return type of this particular program is not written, so you can write it as integer. So it will return integer. So this is the simple implementation part, है ना? So now we are at the end of this lecture, and we saw very important data structure, linear data structure, that is Q. So Q is a linear data structure in which both sides are used. So one side is used for insertion, another side is used for what? Deletion. Is NQ and DQ. And we also discussed that means implementation part, means how to implement NQ operation and DQ operation in case of linear linked list, and what are the drawback of linear linked list, means
after having a sufficient amount of space available, we are not utilizing that space properly. So then we move towards circular case. So circular linked list, circular queue. And in case of circular queue, we implemented both the operations CNQ and CDQ, means circular insertion and circular deletion. Okay, and we also saw the implementation of queue using linked list. Okay, so if we implement the queue using the linked list data structure, so that also we saw two programs, one for insertion and another for deletion. So I hope that these concepts are clear to you, and remaining concepts of queue I will discuss in next class. And if you are getting all the things and learning the content, liking the video, so then like, subscribe and share this channel with your learning community, so that other will also get benefited by the same. Happy learning to all of you. Stay safe.